Assalamu alaikum students. Today's agenda is to discuss about the multiplexer designs using the NAND gates and the transmission gates. Obviously, using the NAND gate is the older thing that you have already performed. इससे पहले आप counters भी बना चुके हैं और flip flop भी बना चुके हैं. So I hope that this activity isn't going to be much difficult for you. Two different types of NAND gates हम इसके अंदर डिज़ाइन करेंगे. One of the multiplexer is a 2 by 1 multiplexer and the other is a 4 by 1 multiplexer. 2 by 1 multiplexer तो बहुत easy होगा. 4 by 1 is a bit complex form. तो उसको हम अभी देखेंगे. NAND गेट का मैंने एक सिंपलेस्ट लेआउट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है सो दैट अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आपको just to remind you that आपने NAND गेट का लेआउट इससे पहले बनाया हुआ है. सो हाउ डज इट वर्क हियर. तो यहाँ पर जो एक simplest 2 by 1 multiplexer given and we already know that how a multiplexer works. The number of inputs, whatever the number of inputs is, it has to be of 2 raised to power n size and the output will always be 1. So the objective of a multiplexer is to channel one of those inputs to that output to that single output, right? तो यहाँ पर 2 by 1 multiplexer का circuit given है which is consisting of 4 NAND gates और हर NAND gate के साथ कोई ना कोई input आपको specify कर रहे हैं यहाँ पर. तो A is इस particular 2 by 1 multiplexer की दो inputs हैं I0 and I1, right? And the control signal is A. ये control signal ये decide करेगा कि which of these inputs I0 और I1 is going to be channeled at the output Q, right? तो logic किस तरह से बनी हुई है I'm sure that you're already familiar with that, so I'm not going into the details of how this circuit is working. I'm just expecting that you are capable of designing this multiplexer using these NAND gates. आपको एक single NAND gate का layout लेना है and you have to interconnect all of these. So यहाँ पर 4 NAND gates हैं तो यहाँ पर आप इसको copy paste करोगे. 4 times 4 4 के 4 NAND gates को आपने interconnect किस तरह करना है that will depend upon all of these input wires and output wires, right? और फाइनली जो फोर्थ NAND गेट है उससे हम आउटपुट रिसीव कर रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट और वन मोर थिंग इज़ दैट यहाँ पर जो लॉजिक ट्रुथ टेबल आपका मेंशनड है दैट इज़ डिस्क्राइबिंग दैट अगर आपके पास A की लॉजिक लो है देन दैट मीन्स दैट I1 इज़ गोइंग टू बी चैनल्ड एट द आउटपुट Q. Similarly, अगर if your A has the logic high, then that means that I0 is going to be channeled at the output Q. और आपने इसी ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करना है जब आप इसको माइक्रोवेव में कंस्ट्रक्ट करेंगे. That is your objective. The other objective is that you are going to implement a 4 by 1 multiplexer using NAND gates. अब इस particular multiplexer में प्रॉब्लम क्या है that यहाँ पर 3 इनपुट NAND गेट्स भी यूज़ हुए हुए हैं. इससे पहले आपने जो NAND गेट्स बनाए हुए हैं दैट आर मोस्टली ऑफ 2 इनपुट NAND गेट्स. तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ अ 2 इनपुट NAND गेट. या आप एक नया लेआउट बना लें दैट इज़ मेड अप ऑफ 3 इनपुट NAND गेट्स, राइट? तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं. आइदर यू कैन इम्प्लीमेंट इट यूजिंग दिस लॉजिक और यू कैन इम्प्लीमेंट इट यूजिंग दिस लॉजिक. यहाँ पे NAND gates obviously इनका नंबर बढ़ गया है because you have converted those 3 input NAND gates into the 2 input NAND gates. और यहाँ पर एक और चीज़ जो important है वो ये है कि ये जो आपके पास select lines हैं S0 and S1 they are being applied. So obviously we have 4 by 1 multiplexer, so this means the select lines आपके पास 2 होंगी and ये जो 1 है
ये आपने लॉजिक वन, आप बेशक लॉजिक वन अप्लाई कर दें यहाँ पर, बट यू कैन एक्चुअली short both of these inputs together so that it works as this particular inputs 1 and 2, they work as inverters. तो आपने S1 अप्लाई करनी है इन दोनों इनपुट्स पे और S0 आपने अप्लाई करनी है इन दोनों इनपुट्स पे, एंड देन यू अप्लाई एज इनपुट्स टू बोथ ऑफ दीज NAND गेट्स, राइट. और इसी S1 को आप डायरेक्टली इन दोनों NAND गेट्स पर अप्लाई करो विदाउट passing it through an inverter. So आपके पास gate number 1 and 2 are both acting as the inverters. तो आपके यहाँ पे कितने NAND gates चाहिए होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 gates चाहिए होंगे. So this is going to be a more complex circuit. So it depends. I'm leaving this exercise up to you, that I'm sure that आप इसको implement कर सकते हैं, because already you have gone through the design of a counter and the design of a flip-flop, so this isn't going to be too much difficult for you. Now the important thing that I'm going to discuss here is about the pass transistor logic gate, or the transmission gate, which is quite different from the traditional CMOS gates जो आपने इससे पहले यूज़ किए हुए हैं. And the reason I'm discussing about this is that several students still have problems regarding the transmission gates, जो कि हम previously इसको discuss कर चुके हैं in one of our online sessions. So इसको हम एक दफ़ा repeat करेंगे just to help you exercise upon the transmission gates or the TG gates. तो इसको implement बिट डिफरेंट वे में किया गया है. यहाँ पर भी आप देख लें कि जो एक ब्लॉक डायग्राम मेंशन्ड है जिसके अंदर एक इनपुट है और एक आउटपुट है, एंड वन इनपुट है जो कि वन ट्रिगरिंग सिग्नल है जिसको हमने सी का नाम दिया हुआ है. दैट इज़ इसको ट्रिगर, इसको कोई भी वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट इट, राइट. तो यहाँ पर हमने एक PMOS और NMOS इन दोनों को इंटरकनेक्ट किया है. किस तरह से कि इन दोनों की सोर्सेस और ड्रेन्स को हमने आपस में शॉर्ट कर दिया, और जो शॉर्टेड पार्ट है वहाँ पर हमने इनपुट अप्लाई की है और आउटपुट अप्लाई की है रिस्पेक्टिवली, और जो इनके गेट टर्मिनल्स हैं वहाँ पर हमने ट्रिगरिंग सिग्नल अप्लाई किया है. जो PMOS है वहाँ पर हमने सी बार, आप प्रीवियसली जो डिस्कशन हुई थी दैट वाज अबाउट कि आप जो भी सिग्नल PMOS पर अप्लाई कर रहे हो उसके साथ आप एक इन्वर्टर लगा सकते हैं टू अप्लाई इट ऑन द अदर गेट टर्मिनल. तो आप इस नॉट गेट को अवॉइड कर सकते हैं इफ़ यू आर डिज़ाइनिंग इट इन अ माइक्रोवेंट. देन यू ऑलरेडी नो दैट आप ने इन्वर्टेड इनपुट्स कैसे अप्लाई करनी है विदाउट यूजिंग एन इन्वर्टर. So I hope that you are familiar with that. तो हम इसको further discuss नहीं करते, right? यहाँ पर एक stick diagram mentioned है. stick diagram के अंदर again ये P diffusion है यहाँ पर और N diffusion है at the bottom, that is representing the NMOS. P diffusion is representing the PMOS, N diffusion is representing the NMOS, right? और हमने इन दोनों की सोर्सेज को और ड्रेन्स को रिस्पेक्टिवली आपस में शॉर्ट कर दिया, और शॉर्टेड एरिया को, और ये जो आपके पास ब्लैक में है ये आपके कॉन्टेक्ट पॉइंट्स हैं, और हमने इनको इनपुट और आउटपुट अप्लाई कर दी, राइट. और गेट टर्मिनल्स जो हैं वो चूँकि PMOS और NMOS आपस में इनके गेट टर्मिनल्स शॉर्टेड नहीं है, दैट्स वाई हमने इन पोलीज को आपस में कनेक्ट नहीं किया, राइट. सो इसीलिए हमने क्या किया है कि जो P डिफ्यूजन के साथ हमने C बार को कनेक्ट किया है, और जो इसी का इन्वर्टेड पार्ट है C, दैट इज़ बीइंग अप्लाइड टू द N डिफ्यूजन, राइट. तो यहाँ पर अब हम इसी की एक एप्लीकेशन छोटी सी देख रहे हैं, दैट इज़ 2x1 मल्टीप्लेक्सर, जो इससे पहले आपने NAND गेट को देखते हुए इम्प्लीमेंट किया. तो इसी के अंदर आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि 2x1 मल्टीप्लेक्सर जब हमने यूजिंग CMOS लॉजिक इम्प्लीमेंट किया था तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे NAND गेट्स अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ रही थी, राइट. बट यहाँ पर आपको
और वी ऑलरेडी नो दैट नैंड गेट्स के अंदर भी सी मॉसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब कि गेट्स तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, बट यहाँ पर आपको 2 पी मॉसेस और 2 एन मॉसेस की ज़रूरत पड़ रही है, और 2 ही ट्रांसमिशन गेट्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं। 4 गेट्स हैं और 2 ट्रांसमिशन गेट्स हैं, राइट। 4 ट्रांजिस्टर्स हैं और 2 ट्रांसमिशन गेट्स हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि फर्स्ट ट्रांसमिशन गेट और सेकंड ट्रांसमिशन गेट को इंटरकनेक्ट किया है विद द सेम लॉजिक जो हमने प्रीवियसली अप्लाई की थी। यहाँ पर एक 2x1 मल्टीप्लेक्सर है जिसकी 2 इनपुट्स हैं, ए और बी। एक उसकी आउटपुट है जी, और सी इज़ द कंट्रोल सिग्नल। तो हमने इस कंट्रोल सिग्नल को एज अ ट्रिगरिंग सिग्नल यहाँ पर यूज़ किया है, और उसी ट्रिगरिंग सिग्नल को हम किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं कि जो TG1 है वहाँ पर हमने जो इसका पी मॉस है उस पर हमने सी अप्लाई किया है, और इस जो ट्रांसमिशन गेट 2 है उसके पी मॉस के ऊपर हमने सी बार अप्लाई किया है, राइट। यानी ये कंट्रोल सिग्नल जो है, दिस इज़ एक्चुअली फॉलोइंग द 2x1 मल्टीप्लेक्सर की लॉजिक जो है उसी को फॉलो कर रहा है, राइट। कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि ट्रिगर कर रहे हैं ट्रांसमिशन गेट 1 और 2 को ऑल्टरनेटिवली। इनपुट्स हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ हमने सोर्सेज को शॉर्ट किया था, यहाँ इन दोनों सोर्सेज को शॉर्ट किया था। तो फर्स्ट ट्रांसमिशन गेट की सोर्सेज को शॉर्ट करने के बाद हमने ए अप्लाई किया, सेकंड के ऊपर हमने बी अप्लाई किया, और आउटपुट्स को हमने आपस में शॉर्ट करने के बाद वहाँ से आउटपुट रिसीव कर ली, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग, राइट। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपके पास 2x1 मल्टीप्लेक्सर की इक्वेशन है, z शुड बी इक्वल टू व्हाट, दिस शुड बी इक्वल टू c बार डॉट a प्लस c डॉट b। ये मैं 2x1 मल्टीप्लेक्सर की जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसी को फॉलो कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट, ठीक है। यानी आपका जो TG1 है उसके साथ हमने इनपुट A अप्लाई की है, राइट। तो उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो कि उसके N मॉस के ऊपर आपको C बार अप्लाई करनी है, राइट। हम N मॉस के ऊपर C बार क्यों अप्लाई कर रहे हैं TG1 के, इसलिए अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि आपके पास n मॉस के ऊपर जो भी n मॉस के ऊपर वैल्यू रिसीव हो रही होगी, आपने ट्रांसमिशन गेट की वर्किंग इससे पहले पढ़ी ही है। सो आई एम श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दैट हम n मॉस के ऊपर जो भी अप्लाई करते हैं वो डायरेक्टली अप्लाई हो रहा होता है, और वही TG की आउटपुट के ऊपर रिसीव हो रहा होगा, राइट। तो हम पी मॉस के ऊपर C अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन n मॉस के ऊपर हम C बार अप्लाई कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज वी वांट दैट आउटपुट के ऊपर आपके पास C बार रिसीव हो, ठीक है। C बार रिसीव होगी तो ही आपके पास ये फर्स्ट हाफ ऑफ द इक्वेशन जो है ये सही से इम्प्लीमेंट होगा, राइट। और सेकंड केस के अंदर जो TG2 है, यहाँ पर हम P मॉस के साथ C बार ही अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि हमें आउटपुट के ऊपर C चाहिए, राइट। और हमने N मॉस के साथ C अप्लाई किया है बिकॉज हमें आउटपुट के ऊपर C चाहिए, राइट। तो आपके पास जो TG1 है वहाँ पर जब हमने पी मॉस के साथ C अप्लाई किया था तो वो इन्वर्ट होकर C बार बन जाएगा, और हम N मॉस के ऊपर ऑलरेडी C बार अप्लाई कर रहे हैं। तो दिस मीन्स दैट आउटपुट के ऊपर आपके पास C बार रिसीव होनी चाहिए। दैट सेटिस्फाइज द फर्स्ट हाफ ऑफ द इक्वेशन। और सेकेंड हाफ ऑफ द इक्वेशन दिस वन जो है, इसके लिए हमें TG2 के साथ ऐसे कनेक्शंस करने हैं कंट्रोल सिग्नल C के कि आपके पास आउटपुट के ऊपर C रिसीव हो, राइट। तो C रिसीव करने के लिए हम क्या करेंगे कि पी मॉस के ऊपर C बार अप्लाई करेंगे सो दैट इट बिकम्स C, और N मॉस के ऊपर हम C डायरेक्टली अप्लाई करेंगे सो दैट आउटपुट के ऊपर आपके पास डायरेक्टली C रिसीव हो। सो लेट्स ट्राई टू मेक इट्स स्टिक डायग्राम। स्टिक डायग्राम में यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं दैट ऑलरेडी मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किए हुए ओरिजिनल सर्किट्स जो है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग, ये आपकी जो साइड है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग ट्रांसमिशन के TG का मैंने यहाँ पर स्टिक डायग्राम मेंशन की हुई है, राइट। और जो राइट हैंड साइड है ये हमने एक्चुअली इम्प्लीमेंट करनी है।
तो एक स्टिक डायग्राम मैंने स्लाइड्स के ऊपर भी मेंशन की हुई है, आप उसको चाहें तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, और चाहे तो जो अभी मैं बनाऊंगी आप इसको फॉलो कर लें, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसी ट्रांसमिशन गेट जो एक सिंगल है इसको हम रिपीट करेंगे। फर्स्ट वी ड्रॉ अ पी डिफ्यूजन, और दो पी डिफ्यूजन हम ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें दो ट्रांसमिशन गेट्स चाहिए, एंड अदर इज़ द एन डिफ्यूजन। दो हमने ड्रॉ किए बिकॉज वी नीड टू ट्रांसमिशन गेट्स, और बाकी इसकी है पोलीज आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द गेट टर्मिनल्स ऑफ बोथ पी डिफ्यूजन एंड एन डिफ्यूजन सेपरेटली। हम इनको इंटरकनेक्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं इन पोलीज को आपस में, बिकॉज हमें पता है कि गेट टर्मिनल्स आर नॉट शॉर्टेड टुगेदर, राइट। और नेक्स्ट हम क्या करना चाह रहे हैं, we are trying to connect the sources of both and drains of both. Sources and drains को हमने आपस में शॉर्ट कर दिया both transmission gates के। ब्लू, राइट। और अब हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं ए फर्स्ट ट्रांसमिशन गेट पे, और यहाँ पर हम बी अप्लाई कर रहे हैं सेकंड ट्रांसमिशन गेट के ऊपर, राइट। और हम आउटपुट किस तरह रिसीव कर रहे हैं कि इन दोनों की आउटपुट्स को हम इंटरकनेक्ट करके शॉर्ट करके यहाँ से हम जी रिसीव कर रहे हैं। अब बाकी रह गया हमने कंट्रोल सिग्नल्स को किस तरह से कनेक्ट करना है, राइट। तो कंट्रोल सिग्नल्स के लिए आपने क्या करना है कि TG1 जो है, दिस इज़ द योर TG1, राइट। TG1 के लिए आपने पी मॉस यानी पी डिफ्यूजन जो है वहाँ पर सी अप्लाई करना है, राइट। तो हम यहाँ पर एक मेटल कनेक्ट करते हैं, एंड देन वी थोड़ा सा डिस्टेंस हम रिड्यूस कर लेते हैं, इसी को इसके टॉप पर हम इसके साथ हम इंटरकनेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम एक कॉन्टेक्ट पॉइंट यूज़ करते हैं, राइट। और यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, और यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट पॉइंट यूज़ करते हैं, राइट। तो फर्स्ट के जो गेट टर्मिनल है, जो पी डिफ्यूजन है फर्स्ट TG1 की, उसके साथ हमने सी अप्लाई किया है, राइट। यहाँ पर हम सी मेंशन कर देते हैं। और जो सेकंड आपने जो गेट टर्मिनल था TG2 का, उसके साथ हमने पी डिफ्यूजन के साथ हमने सी बार अप्लाई की है, राइट। और जो थर्ड सेकंड टर्मिनल का जो एंड फर्स्ट TG का जो एंड डिफ्यूजन है उसके साथ, और यहाँ भी हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं। वी ट्राई टू मेक श्योर दैट ये बोथ मेटल्स जो हैं TG2 का मेटल और जो इनकी आउटपुट को मैंने शॉर्ट किया ये आपस में कनेक्ट ना हो जाए समहाउ। तो हम क्या कर रहे हैं, इस आप इसको मेक श्योर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने भी ट्राई किया ऐसे ही इसको कनेक्ट करने के लिए, राइट। तो अब हम इनको कनेक्ट कर रहे हैं और इसको कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। और लेट्स ट्राई टू राइट डाउन दैट आपने यहाँ पर कौन सी इनपुट अप्लाई करनी है। तो TG1 की जो एंड डिफ्यूजन है उसके साथ हम सी बार कनेक्ट कर रहे हैं, और TG2 का जो एंड डिफ्यूजन है उसके साथ हम सी कनेक्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर सी कनेक्ट करेंगे, राइट। और रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन द सेम। तो दिस मीन्स कि आप चाहे तो इनको आपस में शॉर्ट भी कर सकते हैं, इसको और इसको आपस में शॉर्ट भी कर सकते हैं, राइट। इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप सिमिलरली आप सी को भी इसके साथ शॉर्ट कर सकते हैं, somehow like this, ठीक। So this concludes the stick diagram of your transmission gates logic for a 2x1 multiplexer, and you have to make sure that आप आइदर इसको फॉलो करें या जो स्लाइड्स के ऊपर मेंशन है आप उसी को फॉलो कर लें, दैट आपका जो इसकी आउटपुट है Z दैट शुड फॉलो एग्जैक्टली
जो आपका 2x1 मल्टीप्लेक्सर की लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है. So this concludes today's agenda, and I hope that this is going to be easier for you. अब यहाँ पे मैंने tasks mention की हैं. One of the tasks is missing for 2x1 mux for using TGs. राइट. तो आप क्या करें कि जब व्हेन यू आर मेकिंग द लैब रिपोर्ट्स ऑफ बोथ ऑफ दीज, तो आप जो लैब रिपोर्ट 1 है उसमें आप 2x1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग CMOS लॉजिक, सॉरी नॉट CMOS लॉजिक ही होगी, बट ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू यूज द NAND गेट्स. एट द NAND गेट यू आर गोइंग टू कनेक्ट दैम एट द NAND गेट लेवल, राइट. और एट द सेम टाइम आप 2x1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग ट्रांसमिशन गेट्स भी इम्प्लीमेंट कर लें. That will be your lab report 11 and 12 के लिए आप 4x1 मल्टीप्लेक्सर को यूजिंग NAND गेट्स ही इम्प्लीमेंट करें. और if I'm giving it an open option for you that अगर आप चाहें तो 4x1 मल्टीप्लेक्सर को यूजिंग ट्रांसमिशन गेट्स भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. That will be less complicated compared to that 4x1 multiplexer using NAND gates. तो आप दोनों में से कोई एक लॉजिक यूज़ कर लें, either NAND gates या TG logic for the construction of a 4x1 multiplexer. That will conclude your all of labs for this semester. So I hope that we can discuss about this in the upcoming lab session. So I'm going to end the session now. Allah Hafiz.